Is हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। दौलत अपनी माइक बंद कर। दौलत उसकी बाइक में बंद कर देता हूँ। चलो ठीक है बेटा। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today's the topic is the principle of the biomechanics. Previously we discussed the biology of the tooth movement, that what biological changes occur uh, in the bone when we apply the pressure on the tooth and we achieve the different types of the tooth movements. But how we achieve the different type of the tooth movement with the fixed appliances, that we will discuss in the biomechanics. जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि different types of the tooth movement कौन कौन सी होती हैं, that is the tipping movement, bodily movement, rotations, intrusion and the extrusions. तो ये हम achieve कैसे करते हैं with the same braces and with the same wire, ठीक है ना? कोई fixed braces patients को लगे हुए हैं, हम डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट्स में हमने बॉडीली मूवमेंट करनी है या इसमें हमने टिपिंग मूवमेंट करनी है. तो हाउ वी अचीव दिस टाइप्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टूथ मूवमेंट.
So the mechanics is a discipline that describes the effect of the forces on the bodies. Biomechanics refers to the science of the mechanics in relation to the biologic system. The force क्या होता है? Whenever a load is applied to an object, that will tend to move it to a different position in the space is known as the force. क्योंकि हम पहले ही उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि किस टाइप ऑफ द टूथ मूवमेंट के लिए कितना अमाउंट ऑफ द फोर्स हमें यूज करना पड़ता है. मतलब force is defined in the units of the newtons, is usually measured in the weight units of the grams or the ounces. जैसे हमने कहा ना 35 to 60 or 70 gram force is required for the tipping movement or 70 to 100 is required for the bodily movement. तो ये हम इनका जो यूनिट होता है that is the gram or the ounces में भी लिखा जाता है मतलब. But most commonly हम जो डिस्कस करते हैं that is in the grams. Okay, center of resistance. ये भी हमने बायोलॉजी ऑफ टूथ मूवमेंट में डिस्कस किया था कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन. बेसिकली इन द बायोमैकेनिक्स जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है दैट इज द रोल ऑफ द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस एंड द सेंटर ऑफ रोटेशन, जिसकी वजह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टूथ मूवमेंट अचीव करते हैं. मतलब center of resistance is the point at which the resistance to the movement can be concentrated for mathematical analysis. For an object in the free space, the center of resistance is the same as the center of mass. If the object is partially restrained, as is the tooth root embedded in the bone, the center of resistance will be determined by the nature of the external constraint. Up to free center of resistance is basically the same as the center of mass if the object is free. But if the object is fixed in something, जैसे आपका जो tooth होता है that is fixed within the bone, then the center of resistance will be determined by the जो amount है of the external constant, जितना भी उसका जो portion covered है, तो जितनी root covered है तो center of resistance उस root portion में within the covered area हो गया. Now suppose the center of resistance for a tooth is at approximate the midpoint of the embedded portion of the root. हम ये कहते हैं ना कि center of resistance of a single rooted tooth is at the mid portion from the apex of the root to the crest of the alveolar bone. आप suppose करें कि जैसे इसमें जो है ये अगर normal bone है इसमें, ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट होगा. ये सेम ट्रूथ है. इफ द बोन लेवल इसका कम हो जाए तो डेफिनेटली विद अगर बोन की रिजॉर्प्शन हो जाए, वर्टिकल बोन लॉस हो जाए, तो इसका सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस सेम पोजीशन में नहीं रहेगा. सेंटर ऑफ जो रेजिस्टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा. मतलब या सपोज करें बोन लेवल इज द सेम बट रूट की रिजॉर्प्शन हो जाए. अगर रूट की रिजॉर्प्शन हो जाए तो डेफिनेटली अगेन द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा. So the center of resistance of a tooth depend करता है दो चीजों पे. Crest of the alveolar bone जो height of the alveolar bone है and the root length. ये दो चीजें हैं जो कि center of resistance को define करती हैं. Now the crest of the alveolar bone जो height of the alveolar bone and root length जो है, ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि हम with the orthodontic forces we cannot change. हम उनको चेंज नहीं कर सकते. मतलब ठीक है, हम हाइट ऑफ द एल्वुलर बोन को तो चेंज नहीं कर सकते, वो जितनी है वो रहेगी. जो रूट की लेंथ जितनी है वो रूट लेंथ भी वही रहेगी, वो भी हम चेंज नहीं कर सकते. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ टूथ इज अ फिक्स्ड पॉइंट एंड विद द ऑर्थोडोंटिक मैकेनिक्स, विद द ऑर्थोडोंटिक फोर्सेस we cannot, with the orthodontic mechanics we cannot change the center of resistance. The center of resistance is dependent on the root length and the morphology and the number of the roots and the level of the alveolar bone. So एक चीज याद रखें, the center of resistance is a fixed point in the tooth. Okay. Now what is the moment? ये definition, ये force, movement, ये usually हम physics में पढ़ते हैं. मतलब ठीक है, but definitely in the orthodontic जो हम apply करते हैं forces, तो कुछ
फिजिक्स के जो मैकेनिक्स हैं वो इसमें यूज होते हैं. मतलब movement is a force acting at a distance. Movement is defined as the product of the force times the perpendicular distance from the point of force application to the center of resistance. Okay. Now, if we apply the force on a tooth directly through the center of resistance, तो क्या होगा? There will be a straight tooth movement. ठीक है ना? Suppose अगर हम टूथ पे जो उसका जो सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस है उस पे हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं, टूथ पे जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, सपोज ये आपका टूथ है और ये उसका सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस है, सेंटर पोर्शन है. अगर हम फोर्स डायरेक्टली पास करें थ्रू द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस तो फिर क्या होगा? इस टूथ की बॉडीली मूवमेंट होगी, इसमें कोई रोटेशन नहीं होगी. मतलब ठीक है, क्योंकि रोटेशन कब क्रिएट होती है? वो कब उस सूरत में क्रिएट होगी व्हेन एवर देयर इज एन जनरेशन ऑफ द मूवमेंट. और मूवमेंट कब जनरेट होगी? डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स टाइम्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फोर्स एप्लीकेशन टू द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस. सपोज ये सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस है और फोर्स आप यहाँ पे लगा रहे हैं अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस. सो द फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस. कौन सा डिस्टेंस? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फोर्स एप्लीकेशन to the center of resistance. ये जो distance होगा multiply by the force is equal to the moment. जब आप force apply directly center of resistance पे करेंगे तो क्या होगा? distance तो zero हो गया, distance तो कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा? आपकी कोई movement generate नहीं होगा, there will be only bodily movement. So अब होता क्या है in the orthodontics, जैसे हमने कहा ना कि जो center of resistance है, सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस इज विद इन द रूट, बोन के अंदर है, तो डेफिनेटली बोन के अंदर तो हम फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते. यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस है, ये सपोज रूट पोर्शन है, ये क्राउन का पोर्शन है, यहाँ पे जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सेंटर, यहाँ पे सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो ये रूट के अंदर जाके हम कैसे फोर्स अप्लाई करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो ब्रेसेस आपके जो फिक्स हुए हुए वो क्राउन में हुए हुए यहाँ पे, तो आप जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे करेंगे. ठीक है, यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या होगा? मूवमेंट जनरेट होगी. ठीक है ना, मूवमेंट डेफिनेटली क्रिएट होगा. मतलब ठीक है. अच्छा, अब बेसिकली मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट बेसिकली रोटेशन होती है. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम प्रेशर अप्लाई करें अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस, तो वो फोर्स क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को मूव करेगा बट उसकी रोटेशन कराएगा. सपोज यहाँ पे सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस से यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो ये अगर मूव करेगा तो इस डायरेक्शन में होगा, क्राउन एक डायरेक्शन में जाएगा, रूट दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा, बिकॉज फोर्स इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, अब ये रोटेशन को हम कैसे काउंटर करेंगे ये इसमें हम डिस्कस करेंगे. Movement is measured in the units of the gram and the millimeter. Why gram and the millimeter? Gram is the unit of the force and millimeter is the unit of the distance. If the line of action of an applied force does not pass through the center of resistance, a movement is necessarily created. जो कि आपके fixed appliances में या orthodontics में होता है. मतलब क्योंकि जो आपका लाइन ऑफ एक्शन या जो फोर्स होता है दैट डज नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस, तो डेफिनेटली मूवमेंट क्रिएट होगा. नॉट ओनली विल फोर्स टेंड टू ट्रांसलेट द ऑब्जेक्ट मूविंग इट टू अ डिफरेंट पोजीशन, इट आल्सो विल टेंड टू रोटेट द ऑब्जेक्ट अराउंड द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस. क्या होगा कि जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे एंड द फोर्स इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस, तो वो फोर्स क्या करेगा? विल मूव द ऑब्जेक्ट. ठीक है, वो क्या मूवमेंट होगी? वो रोटेशन हो गया था. मतलब क्राउन मूव करेगा एक डायरेक्शन में, रूट मूव करेगी इन द अपोजिट डायरेक्शन. वो ऐसे क्यों होता है? बिकॉज दैट फोर्स क्रिएटेड द मूवमेंट. उस फोर्स ने मूवमेंट को क्रिएट किया था. और मूवमेंट कैसे क्रिएट हुआ? बिकॉज मूवमेंट उस सूरत में क्रिएट होगी व्हेनेवर द फोर्स इज अप्लाइड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस.
This is precisely the situation when a force is applied to the crown of a tooth. Not only is the tooth displaced in the direction of the force, it also rotates around the center of resistance. Thus, the tooth tips as it moves. यहाँ तक बेटा चीज समझ आई, फोर्स क्या होता है और मोमेंट क्या होता है। बेटा यहाँ तक चीजें समझ आई, फोर्स क्या होता है और मूवमेंट समझ आ गया। यस सर। क्योंकि अगर मूवमेंट समझ आया है तो फिर हम आगे कपल समझ सकेंगे। सर मोमेंट का मतलब ये है ना कि सिर्फ मोमेंट से सिर्फ मतलब स्टेपिंग मूवमेंट होगी ना सर, बोल्ड मूवमेंट नहीं होगी सर। बिल्कुल, देखें जब भी फोर्स अप्लाई करें एंड फोर्स इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस तो वो मूवमेंट जनरेट करेगा। अच्छा, अब वो मूवमेंट क्या करेगा, बेसिकली रोटेशन कराएगा टूथ की। जी सर। ठीक है, now the couple is defined as the two forces equal in magnitude and the opposite in direction. ये भी हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, two forces equal in magnitude and opposite in direction. The result of applying two forces in this way is a pure movement since the translatory effect of the force cancels out. अब ये कैसे होगा? अब ये देखिए बेटा, ये सपोज करें आपका टूथ है, ठीक है, यहाँ पे ये उसका रूट पोर्शन है, यहाँ पे सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे आपके ब्रेसेस लगे हुए हैं, यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस तो क्या होगा, जब इस फोर्स को लेबियल से फोर्स करेंगे और लिंगुअल मूव कराने के लिए तो मूवमेंट क्रिएट होगा। मूवमेंट की वजह से क्राउन विल मूव इन द वन डायरेक्शन एंड रूट इन द मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इससे क्या हो रहा है, टूथ की मूवमेंट भी हो रही है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, रोटेशन भी हो रही है। ठीक है, तो ये इस तरह रोटेट करेगा, मतलब अदरवाइज रोटेशन क्या होगा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव ऑन इट्स लॉन्ग एक्सिस, उसी जगह पे रहे, सिर्फ रोटेट हो, ये बेसिकली रोटेशन की डेफिनेशन होती है। ठीक है, बट जब सिंगल फोर्स हम अप्लाई करेंगे और मूवमेंट क्रिएट हो, सिंगल मूवमेंट अगर क्रिएट होगा तो ऑब्जेक्ट को मूव भी करेगा, साथ साथ में उसकी रोटेशन भी करेगा। अच्छा, अब कपल में क्या होता है, दो फोर्सेस होते हैं दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट दो डायरेक्शन। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक यहाँ से लग रहा है जो कि इसको मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स यहाँ से लग रहा है जो कि दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे इस तस्वीर में आप यहाँ देख सकते हैं, ये दो फोर्सेस हैं, 50 ग्राम का फोर्स यहाँ पे और 50 ग्राम का फोर्स यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या होगा कि ये दोनों फोर्सेस जो है वो कैंसिल आउट होंगे। वो कैंसिल आउट क्यों होंगे, बिकॉज बोथ द फोर्सेस दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो क्या होगा, दोनों फोर्सेस के अमाउंट इक्वल है, इसीलिए दोनों फोर्सेस क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर सपोज करें कि ये फोर्स 50 ग्राम का हो और ये 100 ग्राम का हो तो क्या होगा, ये 50 ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका रिमेनिंग क्या होगा, 50% होगा। बेटा एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। So in the couple, two forces that are same in magnitude and the opposite direction, वो जो equal forces होंगे but opposite direction will cancel out। ठीक है, forces तो खत्म हो गए, but वो जो force होगा वो फोर्स मूवमेंट भी जनरेट करेगा ना। एक सेकंड,
वो जो फोर्स होगा दैट फोर्स विल आल्सो क्रिएट द मोमेंट। अब सपोज करें ये जो ऑब्जेक्ट है जो इस तस्वीर में है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस इज इन द सेंटर, यहाँ पे है इसका सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। जब ये प्रेशर अप्लाई करेगा यहाँ पे 50 ग्राम अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसको मूव भी कराएगा और रोटेट भी कराएगा। रोटेट किस डायरेक्शन में कराएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। रोटेशन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए दूसरे फोर्स पे, ये भी 50 ग्राम का फोर्स है, ये यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अगेन द फोर्स इज द सेम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस जितना कि वो था, तो ये फोर्स भी मूवमेंट जनरेट करेगा। अच्छा, अब ये जो मूवमेंट है ये किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, ये मूवमेंट भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस का जो मूवमेंट है दैट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो डेफिनेटली वो मूवमेंट है वो कैंसिल आउट नहीं हो रही। वो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना। एक डायरेक्शन की चीजें कभी भी कैंसिल आउट नहीं होंगी। कैंसिल आउट अकॉर्डिंग टू द जो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के रूल्स होती है, वो फोर्सेस जो कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे 50 ग्राम फोर्स है इक्वल है एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो कैंसिल आउट हो रही है। बट जो मूवमेंट है वो मूवमेंट कैंसिल आउट नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों का मूवमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में रोटेशन करा रहा है। इसीलिए इसमें आपकी डेफिनेशन में इसका देखिए, द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग टू फोर्सेस in this way is a pure movement since the translatory effect of the force cancel out। जो वो फोर्स जो कि टूल्स को मूव कराएगा किसी भी डायरेक्शन में, वो तो कैंसिल आउट हो रहा है, बट उसका मूवमेंट कैंसिल आउट नहीं हो रहा। उसका क्या हो रहा है, जो मूवमेंट है वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा। वो मूवमेंट कैंसिल आउट क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज द मूवमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन। इस 50 ग्राम का जो मूवमेंट है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, इस 50 ग्राम का जो मूवमेंट है वो भी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। A couple will produce pure rotation, spinning the object around its center of resistance, while the combination of a force and a couple can change the way an object rotate while it is being moved. Couples are often referred to as the applied moment. Torque is a common synonym for the moment, both for the force and the couple. अच्छा, अब यहाँ पे आप हम डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज जैसे हमने पहले कहा ना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टूथ मूवमेंट हम कैसे अचीव करेंगे। हमने सिंगल फोर्स अप्लाई किया, ये जो फोर्स होगा ये क्या करेगा, टूथ को मूव कराएगा इन द वन डायरेक्शन। साथ साथ में क्योंकि फोर्स इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस, तो उसकी वजह से क्या होगा, रोटेशन भी होगी। अब हमारा मकसद ये है, हम चाहते हैं कि ये जो क्राउन की मूवमेंट हो रही है, ये क्राउन की मूवमेंट तो हो, बट जो रूट की मूवमेंट हो रही है, जो इस फोर्स का जो मूवमेंट जो है, जो रोटेशन करा रही है, वो रोटेशन ना हो। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि जो फोर्स हमने अप्लाई किया है, वो रोटेशन लाजमी करेगा, क्योंकि मूवमेंट लाजमी जनरेट होगा ना। अब हम क्या करेंगे, वो जो मूवमेंट क्रिएट हुआ है उसका हम काउंटर बैलेंसिंग मूवमेंट देंगे अपना, और वो काउंटर बैलेंसिंग मूवमेंट कैसे होगा, वो हम देंगे विद द हेल्प ऑफ द कपल। आपने ये एक सिंगल फोर्स अप्लाई किया, सिंगल फोर्स आपका टूथ को मूव कर रहा है लिंगुअल डायरेक्शन में, एंड रूट मूव हो रही है इन द लेबियल डायरेक्शन। वो इसलिए हो रही है कि वो जो मूवमेंट जनरेट हुआ है, इसका हम काउंटर बैलेंसिंग मूवमेंट क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द कपल। हम दो और फोर्सेस देंगे उसी ब्रैकेट के अंदर हम दो फोर्स और देंगे, ठीक है। वो कैसे देंगे वो मैं बताता हूँ कि फिक्स ब्रेसेस में कैसे देते हैं। वो जो फोर्सेस होंगे वो कपल होगा, उसमें फोर्सेस कैंसिल आउट होंगे, सिर्फ मूवमेंट होगा। सपोज करें जो बेसिक हमारा फोर्स है ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, तो जो हम कपल देंगे वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा। मतलब तो क्या होगा, दोनों कपल कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों जो रोटेशन थे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपका टूथ जो है वो बॉडी मूव करेगा। अब ये ध्यान में रखें, जैसे मैंने पहले कहा ना कि
सारी जो चीज है दैट इज बिकॉज ऑफ द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस, और whenever the force is applied away from the center of resistance तो moment create होगा, that moment will cause the rotation, tipping कराएगा मतलब. So to generate the different type of the tooth movement, वो जो force की वजह से rotation create हो रही है, हमने उसको control करना है मतलब. अब उसको control हम कैसे करेंगे? That is with the help of the couple. हम वो couple force apply करेंगे, ठीक है. उसकी वजह से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज या आप जो मूवमेंट है उसका काउंटर बैलेंसिंग मूवमेंट क्रिएट होगा मतलब, एंड दैट काउंटर बैलेंसिंग मूवमेंट will basically control the tooth movement and we achieve the different types of the tooth movement. क्लिनिकल एग्जांपल ऑफ कपल क्या है, फिक्स्ड ब्रेसेस में कैसे कपल जो है वो क्रिएट होता है. सपोज जब आप इनिशियल अलाइनमेंट करते हैं, देयर आर इररेगुलर टीथ, एंड इररेगुलर टीथ में जब हम वायर इंगेज करते हैं, आप कहते हैं ना कि जी दांत टेढ़े थे, हमने रेक्टेंगल नाइट्राई की वायर लगाई और सारे जो है इसके जो दांत थे वो अलाइन हो गए. वो टीथ कैसे अलाइन हुए? सपोज कपल कैसे होगा, ये वायर इररेगुलर टीथ में एंगेज हो रही है, दैट वायर इज अप्लाइंग अ फोर्स इन द 2 पॉइंट्स, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रही है और यहाँ पे कर रही है. तो डेफिनेटली दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और फिर टूथ की रोटेशन होगी मतलब, ठीक है. ये तो होगी मीजो डिस्टल डायरेक्शन में, तो ये रोटेशन होगी दैट इज इन द मीजो डिस्टल डायरेक्शन. लेबियो लिंगुअल डायरेक्शन में कैसे होगी? जब आप ये रेक्टेंगुलर वायर फिट करते हैं विद इन ए रेक्टेंगुलर स्लॉट, तो क्या होगा, जब ये रेक्टेंगुलर वायर ब्रैकेट के अंदर एंगेज होगी तो इट विल अप्लाई अगेन द प्रेशर ऑन द 2 पॉइंट्स. एक यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेगी, दूसरा यहाँ पे करेंगे. तो अगेन डेफिनेटली ये जो रेक्टेंगुलर वायर है ये टूथ को रोटेट करेगी विद इन द ऑन इट्स जो एक्सिस है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दोनों हो सकते हैं मतलब. सपोज करें कि जैसे ये वायर है, ये अभी तो इस डायरेक्शन में एंगेज हो रही है, ये यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रही है और यहाँ पे अप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है. अगर सपोज करें ये फोर्स यहाँ पे अप्लाई करे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो उसकी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगी. सो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन विद द कपल हम अचीव करते हैं डिपेंडिंग कि हमारी नीड क्या है. The center of rotation, the point around which rotation actually occurs when an object is being moved. जिस पॉइंट पे भी रोटेशन होगा जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उस जिस पॉइंट पे रोटेशन होगा उसको कहेंगे सेंटर ऑफ रोटेशन. If a force and a couple are applied to an object, the center of rotation can be controlled and made to have any desired location. अब डिफरेंस क्या है सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस और सेंटर ऑफ रोटेशन में? सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस इज ए फिक्स्ड पॉइंट इन द टूथ. सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द जो आपका लेंथ ऑफ द रूट है एंड हाइट ऑफ द एल्वुलर बोन है, ठीक है. बट द सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है? सेंटर ऑफ रोटेशन इज ए मूवेबल और द चेंजेबल पॉइंट. सेंटर ऑफ रोटेशन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? Center of rotation can be changed by the combination of a force and the couple. Suppose करें हम force and couple किसी एक object पे tooth पे apply करें, ठीक है, तो center of rotation को हम अपनी मर्जी का डिजाइन कर सकते हैं. Suppose करें कि हम चाहते हैं कि जो center of जो rotation है, मतलब ये अगर हम चाहें कि center of rotation जो है वो apex पे हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिक फोर्स अप्लाई करेंगे, जो कपल है उसका जो अमाउंट होगा वो हम कम कर देंगे, कपल थोड़ा सा कम अप्लाई करेंगे ताकि रूट इस डायरेक्शन में मूव ना करे, उसी पोजीशन पे स्टेबल रहे. हम चाहते हैं कि सेंटर ऑफ रोटेशन इंसाइजल एज पे हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, मतलब जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो हम कपल अप्लाई करेंगे वो कपल हम ज्यादा अप्लाई करेंगे. मतलब ज्यादा कपल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन रूट पे आ जाएगी, इंसाइजल एज पे आ जाएगा, मतलब अक्लूजल सरफेस पे सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा और रूट की मूवमेंट होगी. क्राउन उसी पोजीशन में स्टेबल होगा, सिर्फ रूट की मूवमेंट.
So the center of rotation is a movable point, या हम इसको change कर सकते हैं, and by changing the center of rotation we achieve the different types of the tooth movement. ठीक है, अब देखें ना, bodily movement है, center of rotation नहीं होगा, आपका tooth जो है वो bodily move करेगा. मतलब आपका tipping movement है, crown move in the one direction, root move in the opposite direction. ठीक है, तो उसमें center of rotation यहाँ पे होगा ना, इस तरह move होगा. अच्छा, सपोज करें कि टॉर्क की मूवमेंट है. टॉर्क मूवमेंट क्या होती है? लेबियोलिंगुअल मूवमेंट ऑफ रूट. उसमें क्या करेंगे, आपका इंसाइजल एज जो आपका क्राउन है उसको हम स्टेबल रखेंगे, सिर्फ रूट को मूव करेंगे. मतलब जब हम रूट को मूव करेंगे तो आपका क्राउन स्टेबल होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ रोटेशन वो इंसाइजल एज पे है. तो ये कैसे चेंज होगा सेंटर ऑफ रोटेशन? बाय चेंजिंग द फोर्स एंड द कपल. If a force and the couple are applied to an object, the center of rotation can be controlled and made to have any desired location. The application of a force and a couple to the crown of a tooth, in fact, is the mechanism by which bodily movement of a tooth or even greater movement of the root than the crown can be produced. Two unequal forces applied to the crown of a tooth to control the root position can be resolved into a couple and a net force to move the tooth. ये एक example दिया हुआ है. If a 50-gram force applied to a point on the labial surface of an incisor tooth 15 millimeter from the center of resistance, a 750 millimeter movement वो जनरेट होगा. अब ये सपोज करें यहाँ पे 50 ग्राम फोर्स लग रहा है, ठीक है, on the crown of the tooth. That 50 gram force is 15 millimeter away from the center of resistance. ठीक है, that जो आपका मूवमेंट जनरेट होगा वो कितना होगा? 750 ग्राम मिलीमीटर. जो मूवमेंट क्रिएट करेगा ये 50 ग्राम फोर्स, दैट इज 750 ग्राम मिलीमीटर. इस मूवमेंट को कहेंगे, हम क्या कहेंगे, इस मूवमेंट को हम नाम देंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स. Movement that is created by the force is known as the moment of force, MF, would be produced. ठीक है. To obtain bodily movement, it is necessary to apply a couple to create a moment. क्योंकि जो फोर्स मूवमेंट क्रिएट कर रहा है that is 750 ग्राम मिलीमीटर मूवमेंट है, जो कि क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा ऑफ द टूथ. ये जहाँ पे फोर्स है तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगी आपने. ठीक है, बॉडीली मूवमेंट कराने के लिए हमें कपल क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है, और उस कपल को हम कहेंगे मोमेंट ऑफ कपल. क्या कहेंगे? मोमेंट ऑफ कपल. दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू द ओरिजिनल मूवमेंट. अब जो 50 ग्राम फोर्स है 750 ग्राम मिलीमीटर मूवमेंट जनरेट कर रहा है, वो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है. ठीक है, अब हम नहीं चाहते कि इसकी रोटेशन हो, इसमें बॉडीली मूवमेंट हो, तो हम क्या करेंगे? काउंटर बैलेंसिंग मूवमेंट देंगे. उस काउंटर बैलेंसिंग मूवमेंट को कहा जाता है मोमेंट ऑफ कपल. मतलब हम कपल देंगे, ठीक है, और वो कपल क्या करेगा? 750 ग्राम मिलीमीटर मूवमेंट या रोटेशन क्रिएट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉक, तो 750 ग्राम जो मूवमेंट ये क्रिएट कर रहा है और 750 ग्राम मूवमेंट जो मूवमेंट ऑफ कपल क्रिएट कर रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका टूथ जो है वो बॉडीली मूव करेगा. ओके, one way to do this would be to apply a force of 37.5 gram, pushing the incisal edge labially at a point 22 millimeter from the center of resistance. This creates a 750 gram millimeter movement in the opposite direction. So the force system is equivalent to a couple with a 12.5 gram net force to move the tooth lingually. With this force system, the tooth would not tip, but with so light a net force, there would be only a small amount of movement. To achieve a net 50 gram for effective movement, it would be necessary to use 200 gram against the labial surface and 150 gram in the opposite direction
against the incisal edge. अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि सपोज करें कि लेबियल सरफेस पे 50 ग्राम फोर्स लग रहा है। ठीक, आप इसको एग्जांपल इस तरह ले लें कि रिमूवेबल अप्लायंस पेशेंट को दिया हुआ है। वो रिमूवेबल अप्लायंस जो है वो लेबियल सरफेस पे क्या कर रहा है, 50 ग्राम फोर्स अप्लाई कर रहा है, और वो 50 ग्राम फोर्स जो है वो 750 ग्राम मिलीमीटर मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। अच्छा, अब हमें ये है कि भाई दिया हुआ तो रिमूवेबल अप्लायंस है, लेकिन हम चाहते हैं कि बॉडीली मूवमेंट हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिंगुअल साइड पे कुछ फोर्स दें, इतनी फोर्स दें कि इस फोर्स से कम हो, क्योंकि अगर इस फोर्स से डेफिनेटली ज्यादा होगा तो क्या होगा, टूथ की मूवमेंट ही नहीं होगी। मतलब यहाँ पे 50 ग्राम हमने फोर्स दिया है, यहाँ लिंगुअल साइड पे 37.5 ग्राम फोर्स दिया है इंसाइजल एज पे, एंड ये जो 37.5 ग्राम जो फोर्स है दैट इज 22 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस। ये 15 मिलीमीटर है लेबियल वाला और ये 22 मिलीमीटर, तो दोनों का जो मूवमेंट क्रिएट होगा वो 750 ग्राम मिलीमीटर होगा। जो लेबियल फोर्स है वो रोटेशन कराएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट, जो लिंगुअल फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब यहाँ पे 50 ग्राम फोर्स है, यहाँ पे 37.5 ग्राम फोर्स है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जो आपका रिमेनिंग फोर्स होगा वो कितना होगा, 12.5 होगा। लेकिन 12.5 फोर्स काफी कम फोर्स है जो कि टूथ की इतनी मूवमेंट नहीं करा सकेगा। बट सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट देने का मतलब ये है कि एक तो ये है कि आप जो लेबियल पे फोर्स दे रहे हैं, ठीक है, उसका काउंटर बैलेंसिंग फोर्स मूवमेंट जो है वो आप लिंगुअल पे देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, जो मूवमेंट कैंसिल आउट करेगा और बॉडीली मूवमेंट होगी। बट क्योंकि अब हम फिक्स अप्लायंसेस यूज करते हैं और फिक्स अप्लायंसेस में हम लिंगुअल साइड से कोई फोर्स नहीं देते हैं, अब जितनी भी चीजें होंगी दैट आर विद इन द ब्रैकेट, उस एक ब्रैकेट के अंदर हम चीजें अचीव करते हैं, वही ब्रैकेट होगा, ठीक है। उसी ब्रैकेट के अंदर हम राउंड वायर यूज करें या उसके अंदर हम रेक्टेंगुलर वायर यूज करें, वही रेक्टेंगुलर एंड राउंड वायर को चेंज करके हम ये सारी चीजें अचीव करते हैं कि कितना फोर्स लगेगा, कितना मूवमेंट क्रिएट होगा, काउंटर बैलेंसिंग मूवमेंट क्या होगा और कपल क्या होगा। जो movement that is created by the force is known as moment of force. Movement that is created by the couple is known as moment of couple. MC is moment of couple, MF is moment of force. ठीक है, अब ये आगे जो चीजें हम डिस्कस करेंगे that is basically वही moment of force and moment of couple को हम चेंज करके different types of the tooth movement जो है वो हम अचीव कर सकते हैं। यहाँ तक बेटा क्लियर समझ आई? जी बेटा। सर इस एग्जांपल में ना 50 ग्राम फोर्स 15 मिलीमीटर डिस्टेंस लिंगुअली अप्लाई हुआ है और 37 ग्राम फोर्स 22 मिलीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन लेबियली अप्लाइड हुआ है। अगर हम इस तरह करें कि ये 37.5 ग्राम की जगह 50 ग्राम ऑफ फोर्स एट 22 मिलीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द लिंगुअल साइड भी अप्लाई करें तो फिर हम ये मूवमेंट को ओवरकम कर सकते हैं कि नहीं? फिर तो बेटा देखें, जो आप लेबियल पे भी 50 ग्राम फोर्स दे रहे हैं, ठीक है, और लिंगुअल पे भी 50 ग्राम फोर्स दे रहे हैं, जी ठीक है। लेबियल जो फोर्स है दैट इज 15 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस, और जो लिंगुअल पे है दैट इज 22 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस। नहीं सर, लिंगुअल भी 15 मिलीमीटर करते हैं, सेम डिस्टेंस पे दोनों करते हैं। अगर सेम डिस्टेंस पे कर देंगे तो फिर ये कपल क्रिएट हो जाएगा ना। जी सर, कपल क्रिएट हो जाएगा, फिर उसकी मूवमेंट नहीं होगी, टूथ आपका सिर्फ रोटेट करेगा, मतलब बस। राइट सर, राइट। ठीक है, बल्कि क्या होगा, आप टूथ की कोई मूवमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मूवमेंट होगी नहीं कुछ, क्योंकि 50 ग्राम फोर्स जो लेबियल साइड पे है वो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, ठीक है। राइट सर। 50 ग्राम फोर्स जो लिंगुअल साइड पे है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। टूथ आपका उसी पोजीशन पे रहेगा, ना तो उसमें मूवमेंट होगी ना उसमें रोटेशन होगी, तो कुछ नहीं होगा। यस सर। ठीक है, क्योंकि रोटेशन करने के लिए भी आपको कपल चाहिए ना। ये इसीलिए तो देखें लिंगुअल साइड पे 37.5 का एग्जांपल क्यों दिया,
ताकि लेबियली फोर्स ज्यादा हो और उसकी मूवमेंट हो सके ना, मतलब यस सर, नेट फोर्स क्रिएट करना है। हाँ, जो मूवमेंट हम क्रिएट होता है ना, वो किस चीजों से होता है? मूवमेंट दो चीजों से क्रिएट होता है, एक फोर्स से, दूसरा डिस्टेंस से। लेबियल पे फोर्स ज्यादा है, डिस्टेंस कम है। बिल्कुल, लिंगुअल पे क्या किया है, फोर्स कम कर दिया, डिस्टेंस बढ़ा डिस्टेंस दिया, बढ़ाइए। तो दोनों तरफ मूवमेंट इक्वल होगा, ठीक है यस ना? सर, तो और जो फोर्स क्रिएट होगा, नेट फोर्स नेट फोर्स आपका लेबियल पे क्रिएट हो रहा है, और बॉडीली मूवमेंट इससे हमें अचीव हो बॉडीली जाएगी। मूवमेंट हम इससे अचीव करेंगे। बिल्कुल बेटा किसी और ने कुछ क्वेश्चन पूछना है? सर एक माइंड में क्वेश्चन ये था कि हमें कैसे आइडिया हुआ कि हम 50 ग्राम फोर्स लगा रहे हैं या 100 ग्राम फोर्स लगा रहे हैं या 80 ग्राम फोर्स लगा रहे हैं, हमें किस तरह? अच्छा बेटा, इसमें देखें दो तीन चीजें होती हैं। एक तो ये है कि जब हम वायर इंगेज करते हैं ना, मतलब ब्रैकेट के अंदर या टूथ के अंदर, जब भी हम वायर लगाएंगे उसमें, मतलब तो हम ये होता है कि भाई ये वायर अब हम लगाएंगे तो ये इतने ग्राम फोर्स इस पे अप्लाई करेंगे। दूसरा चीज ये होता है कि गैजेट्स होते हैं मेयर करने के लिए, कि हम सपोज करें कि उसका फोर्स हम मेयर कर लेते हैं कि ये वायर कितना फोर्स अप्लाई करेगी। सपोज हम नाइट आई की वायर है ना, नाइट आई की वायर हम इंगेज कर रहे हैं, नाइट आई के वायर को हम बैंड करके उस जो गैजेट होगा उससे हम मेयर कर सकते हैं कि ये इतनी, जो अगर इसमें वायर में बैंड आएगा तो ये कितना फोर्स अप्लाई करेगी, तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। किसी और ने बेटा कुछ पूछना है? बस चले, ये चीजें जो है ना, आपने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस, सेंटर ऑफ रोटेशन, फोर्स, मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ कपल, ठीक है। MC एंड MF, ये चीजें याद रखिएगा। आगे फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये आप मेरे ख्याल में ड्राई भी है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट भी लगेगा, तो बाकी फिर नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे, ताकि 2-3 लेक्चर में ये आपका कवर भी हो जाए और कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much.